મતદાન તમારો અધિકાર અને ફરજ છે, પરંતુ કયા છે તમારા હક જાણો મારી સાથે. પોતાના જનપ્રતિનિધિ માટે શું વિચારે છે આજનો યુવા? અમે લોકો મત આપે પછી જે નેતા ચૂણીને આવે એ અમારું કામ નથી કરતો. अनेक समस्याओं वच्चे घेराયેલો છે આજનો મતદાર. सबसे बड़ी समस्या सूरत के अंदर है ट्रैफिक की और दूसरा करप्शन. કેવો હોવો જોઈએ તમારો ઉમેદવાર? અમારો ઉમેદવાર એવો હોવો જોઈએ જે ગરીબોની સમસ્યા અને એમની વચ્ચે ઊભો રહીને બધાની સમસ્યા દૂર કરી શકે. તો જણાવો આપનો અભિપ્રાય. અમે કરીશું તમારા હક અને સમસ્યાઓની રજૂઆત S9 ન્યૂઝના ચૂંટણી વિશેષ મારો હક મારા મત કાર્યક્રમમાં. સતીશભાઈ, હમણાં જે લોકસભાની ચૂંટણી છે એમાં તમે કયા પ્રકારના નેતાની અપેક્ષા રાખો છો? નેતા કેવા હોવા જોઈએ? ફર્સ્ટ તો નેતા જ્યારે ઇલેક્શન આવે ત્યારે આવી જાય, 5 વર્ષ મોડું જ નહીં બચાવ જશે. આપણા લોકલ જે કામ કરે ને તે કરતા નથી કોઈ બી. આપણને જ્યારે ઇલેક્શન આવે ત્યારે આવી જાય 5 વર્ષ પછી. મેઇન તો નેતા પ્રમાણિક હોવું જોઈએ. અત્યારે જે નેતા પદને જેનો ઉભા રહ્યા છે કોંગ્રેસ અને ભાજપના, તેમાંથી તમે બંને ઉમેદવારને ઓળખો છો? હા, ઓળખ છે બંનેને. કોણ કોણ છો? પણ અમારે તો અહીં આપણા લોકલ ડૉક્ટર કેસી પટેલ, કોંગ્રેસ તો હજુ ક્યારે ખબર નથી હજુ કોંગ્રેસનું. આપણે માણસ જોઈને આપશું, આપણે પક્ષ સાથે કોઈ લેવા જ નથી. માત્ર ચૂંટણી વખતે જ નથી, પણ જ્યારે લોકોની જરૂર હોય ને ત્યારે તેને મદદ કરતો હોવા જોઈએ તેવો નેતા જોઈએ. ઉત્સાહી જોઈએ, એટલે લોકોને કંઈ પણ કામમાં મદદ થવો જોઈએ. ભ્રષ્ટાચારી ન હોવો જોઈએ. ભ્રષ્ટાચાર કરે તો તેને સામે લડતો હોવો જોઈએ તેવો અમને નેતા જોઈએ. જે નાના નાના માણસો છે જે અમારા લોકોને કંઈક સારું કરી શકે એવા અમને નેતાઓની જરૂરત છે. ને વિકાસના કામોમાં કયા જરૂરી છે એમ ખાસ કરીને? ખાસ કરીને કારણ કે અમને નાના માણસોને પાણીને તકલીફો હોય છે ને લાઇટનો પણ તકલીફો હોય છે. એવા ઘણા બધા જે તકલીફો હોય છે તે અમને બહુ સ્વચ્છ જે બધાનું સાંભળી શકે, બધાનું કામ કરી શકે એવા નેતાની ખાસ જરૂર છે હમણાં. ને અત્યારે ખાસ કરીને કહેવાય છે ખાસ કરીને ભ્રષ્ટાચાર તો એકદમ હદ કરી નાખી છે અને એ ભ્રષ્ટાચાર મિટાવી શકે ને જે ભ્રષ્ટાચાર વગર સ્વચ્છ એક નેતાની ખાસ જરૂર છે ભારત દેશ માટે. સારો ઈમાનદાર નેતા હશે તો લોકોનું ભલું થશે અને જિલ્લાના નાના મોટા પ્રશ્નો હલ થશે. એના માટે જરૂરી દોડધામ કરવાની હોય, કામકાજ કરવાનું હોય તો એવી શક્તિ ધરાવતો નેતા જોઈએ આપણને. અત્યારે જે બે નેતા ઉભા રહ્યા છે ભાજપના કોંગ્રેસના, એ લોકોને તમે ઓળખો છો? બેમાંથી કોઈને નહીં ઓળખો? તો તમે કઈ રીતે તમે વોટ આપવાના? જેમ કે કોઈ નેતા કોઈ સારા હોય તો તેને વોટ આપી શકાય. જે ટાઈમ પર અમારું કામ કરે, દેશને ઉપર લાવવામાં ઘણી મદદ કરે. પછી એવો નેતા નથી જોતા કે જે આવે ત્યારે આમ કરીશું તેમ કરીશું અને પછી આવે પછી કંઈ કામ જ નથી કરતા. એટલે અમને એવા નેતા જોઈએ જે આવીને સમાજને ઉપર લાવે, એવા નેતા જોઈએ છે એમને. એટલે અત્યારે જે બે નેતા છે ભાજપ અને કોંગ્રેસના, તે લોકોને તમને નામ ખબર છે કોણ કોણ ઉભા રહે છે? વલસાડ જિલ્લામાં કેસી પટેલ છે, કોંગ્રેસમાંથી હજુ નથી. એ લોકોને બંનેને તમે ઓળખો છો? એ કેસી પટેલ ઓળખીએ છીએ, એની સાથે મુલાકાત થાય છે, પણ કોંગ્રેસમાંથી તો કોઈ આવતું જ નથી. કોંગ્રેસમાં કોણ તેવી ખબર નથી પડતી. અત્યારે લોકસભાનું ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે, તો તમને કયા પ્રકારના નેતા જોઈએ છે? અને અમને દેશમાં સારા એવા નેતા જોઈએ, ચલાવે એવા, લોક લાગણીને પબ્લિકને સમજે એવા. બરાબર, લોકશાહી દેશ છે એટલે. અહીંના જે ઉમેદવારો ઉભા રહ્યા છે ભાજપ કોંગ્રેસ, તેમાં તમે ઓળખો છો? તે લોકોના નામ શું છે? હવે ભાજપના ઉમેદવારમાં તો આપણે કેસી પટેલ કહેવાય છે ને, કેસી પટેલ છે, બરાબર. અને હવે કોંગ્રેસના તો થોડુંક ખબર નથી, પણ એ બી છે ખરા, સારા છે એ બી, જે મુઈગા છે તે. તો તમને કેવા પ્રકારના જોઈએ અત્યારે? તો મેં કોઈ પક્ષને ખેંચતો નથી, પણ આપણને દેશને સારી એવી મદદ કરે અને ચલાવે એવા, કરપ્શન વગરના. સામાન્ય માણસથી બધાનો ઉદ્ધાર થાય, નીચેથી ઉપર સુધી બધાનો. અને આજના મોંઘવારીના જમાનામાં બધી વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ સારી રીતે થઈ શકે અને રોટી કપડાં और મકાન એટલે તમારા એ બધું સસ્તું જે મળતું હોય તમને તો બીજી કશી જરૂર નથી. ચોખ્ખાઈ જોઈએ, પાણી જોઈએ અને રહેવાનું મચ્છરનો ત્રાસ નહીં એ રીતનું બધું હોય
જસ્ટ લાઈક પહેલાં ગામડામાં રહેતા હશે તો બધાને કોઈ બીજે વધારે જરૂર નથી. આ 3 વસ્તુ આવી જાય એટલે બધું જ આવી જાય. અને એમાં નેતાઓ પર વધારે આધાર રાખે. નેતાઓ જે ખરેખર ગળથુથીમાંથી જેમને આ સેવા કરવાનું જે મળેલું હોય બાપદાદા તરફથી, એ સેવા જો આગળ ચલાવે આ રીતે બીજો કોઈ બી જાતનો લોભ કર્યા વગર, તો એ જ આજની આ જમાનાની જરૂર છે. રાષ્ટ્ર અત્યારે જે રીતે ચાલી રહ્યું તે જોતા દેશની અંદરથી ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદ થવો જોઈએ. ભ્રષ્ટાચાર રહિતના જે કંઈ પણ ઉમેદવારો હોય ને સારી લાયકાત ધરાવતા હોય, સ્પષ્ટ વક્તા હોય તેવા વ્યક્તિને આજે ચૂંટીને મોકલવા જોઈએ એવું મારું સ્પષ્ટપણે માનવું છે. તે સાથે સાથે મારે એવું પણ કહેવું છે કે આજે જ્યારે ચૂંટણીના પડઘમો વાગી રહ્યા છે અને જે ચૂંટણી પ્રચાર કાર્ય યુદ્ધના ધોરણે પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે જે પણ રાજકીય પક્ષો છે એના નેતાઓ જે વાણી વિલાસ કરી રહ્યા છે અને અસભ્ય ભાષા જ્યારે પોતાના પ્રવચનમાં વાપરી રહ્યા છે તે બહુ યોગ્ય નથી. જ્યારે જે વ્યક્તિ પોતાને રાષ્ટ્રીય નેતા તરીકે ઓળખ આપતા હોય, અગર તો રાષ્ટ્રીય નેતા તરીકે ઉભરી આવવાના જો પ્રયત્ન કરતા હોય તેવા વ્યક્તિએ આવી અભદ્ર ભાષા વાપરવી ન જોઈએ. આજે લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે સર્વ નાગરિકોનો એક અધિકાર છે વોટ આપવાનો. તો સર્વ નાગરિકોને હું એક નમ્ર વિનંતી કરું છું કે પોતાના અધિકારનો સદુપયોગ કરે અને વોટિંગ કરે. બીજું આપે પ્રશ્ન પૂછ્યો એ બાબતે જણાવો કે આપણને એવા નેતા જોઈએ કે એ નેતા આપણી જરૂરિયાતોને પૂરી કરે, આપણને સાંભળે, ચૂંટણી પહેલાં જે વચનો આપ્યા હોય તે વચનોને પાલન કરે અને દરેક નાગરિકના પોતાના દિલ સુધી પહોંચીને એની જરૂરિયાતોને જે પૂરી કરે એવા આપણે નેતાની જરૂર છે કે જે સામાન્ય માણસોને બી પણ સાંભળીને એની જરૂરિયાતો પૂરી કરે. ચૂંટણી એટલે લોકશાહીનું પર્વ, હા, લોકશાહીનો ઉત્સવ કહેવાય અને એમાં જનજાગૃતિ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને સામે પ્રતિનિધિ એવા આપણે ચૂંટવા છે કે જે સતત જનતાના સાથે સહયોગી હોય, જનતાની સાથે જેનો જીવન સંપર્ક રહેતો હોય અને જનતાના પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે કટિબદ્ધ હોય. આજ સુધીનો અનુભવ એવો કે છે કે નગરપાલિકાની ચૂંટણી હોય કે વિધાનસભાની કે લોકસભાની ચૂંટણી હોય, પરંતુ ચૂંટણી પતી ગયા પછી પ્રતિનિધિનો જનતા સાથેનો સંપર્કનો અભાવ વર્તાય છે અને એના હિસાબે લોકોના પ્રશ્નોને જે પ્રાણ પ્રશ્નોને વાચા મળવી જોઈએ વાચા મળતી નથી. એટલા માટે આપણે એવા નેતાને ચૂંટીએ, આપણે એવા પ્રતિનિધિને ચૂંટીએ કે જે સતત આપણી સાથે સંપર્કમાં હોય, આપણા નાના મોટા પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે તૈયાર હોય અને એનું સરળીકરણ રીતે એ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થાય અને માણસોને એમ થાય કે ભાઈ નહીં, અમે એક સારા પ્રતિનિધિને ચૂંટીને મોકલાયો છે એવો અહેસાસ કરાવે એવા પ્રતિનિધિને ચૂંટીએ. ये नौसारी बाजार नमक वाली ये गली का एरिया है और हम लोगों की समस्या ये है कि भाई ये एसएमसी वालों ने जो घर तोड़े उसमें दीवार इतनी बड़ी खड़ा कर दी, उसके बाद मेले में ढक के भी नहीं देखते. और हमारे मेले में कोई ऐसा नेता है नहीं कि कोई हमारे साथ ढाक डुकोरी करे या फिर कचरे वाले आए कि कचरा लेके, ऐसी जान है नहीं, लाकड़ियाँ खाता है हमारे मेले में. और कोई ऐसे कॉपरेटर ये कोई भी नहीं ऐसा ढक कर देता. सिर्फ इलेक्शन के लिए ही आते हैं लोग और इलेक्शन पुरता ही हम लोगों को पहचानते, उसके बाद नहीं पहचानते. आपकी समस्या क्या है हाल में? अभी हाल में तो ऐसे हमारे मेले में देखो, तुम ही देख सकते हैं कि क्या चीज़ की ना पत्थर बढ़ा सकते हैं, नहीं कचरा ले जा सकते हैं, नहीं कुंडियाँ साफ करवा सकते. और रहा सवाल हमारे बच्चों की पढ़ाई का भी बहुत टेंशन आ रहा है हमको. एसएमसी के कोई अधिकारी या साफ सफाई के लिए आते? नहीं, कोई नहीं आते. हम अर्जी दे के थकते, वो अर्जी देने आते हैं, सिर्फ ढाक डुकोरी करके चले जाते हैं. और आपका नेता कौन है यहाँ का? हमारा नेता है ही नहीं कोई, सिर्फ इलेक्शन के लिए आते हैं हमारे मेले में, भाई आओ इलेक्शन देने, फिर उसके बाद तो कौन है हम कौन है पहचानते ही नहीं. और आपका नेता किस तरह का होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, हम लोगों पे ध्यान देवे, मेले में क्या चीज़ की समस्या है, नहीं है, तकलीफ है, कि हमारे बोलने के पहले वो खुद ध्यान देवे कि भाई ये मेले में ये चीज़ की तकलीफ है, कि हम खुद उनको दिल से अपनाए. लोगों को ऐसा नेता चाहिए अपना. आपका नेता कौन है यहाँ का? कोई नेता भी नहीं. हमको कुछ परेशानी होती तो जाएंगे किसके पास हम? नेता कौन सा है? तो आपका नेता कभी यहाँ मुलाकात के लिए आया? एक दिन नहीं आया. अभी चुटने आएंगे तो सब घरों घर आएंगे कि चलो हमको वोट दो. हाँ हाँ, वोट देने को आएंगे सब जाने के चलो निकलो घर के बाहर, निकलो घर के बाहर. पैसे खा लेंगे ना, हमको परेशानी करके घर के बाहर निकालेंगे. देव. आपका नेता किस तरह होना चाहिए? बहुत अच्छा होना कि हम जो कहे वो भी सुने, वो जो कहे हम सुने उनके बात. भाई क्या किसकी समस्या क्या है? मेन बात ये है कि आधा के यहाँ गंदवाड़ी बहुत है, कोई म्यूनसिपाल्टी वाला साफ़ करने आता नहीं.
पत्थर भी यहाँ बिठाने के अर्जी दे दे के थक गए, कोई पत्थर बिठाने भी नहीं आता म्यूनसिपाल्टी वाला। आपके यहाँ के कोई को रजूआत की थी? आपके यहाँ का सांसद कौन है, आप पहचानते हैं? नहीं, हम नहीं पहचानते उनको। कौन है यहाँ का नेता? नेता वही पता नहीं, नेता कौन है। वोट लेने के टाइम पे लोग आगे बढ़ते, हाथ पैर जोड़ते, फिर वोटिंग खत्म हो जाती, तू कौन है मैं कौन, ऐसा हो जाता है। और आपका नेता कैसा होना चाहिए? हमारा नेता ऐसा होना चाहिए कि सब हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दे, गरीबों को समझे। क्या समस्या आपके विषय? समस्या ये है कि ना गली में आकर सुधारा होता है, ना हमारे जान पे दीवार खड़ी कर दिए, इतनी गंदगी है, कूंडियाँ उबलाती है, आने जाने का रास्ता एकदम पत्थरों का है, आने जाने वाले गिर जाते, ना गाड़ी जा सकती है ना हम जा सकते सीधे, हर चीज़ की समस्या है। आपने कभी इसके बारे में अपने सांसद को कभी? कोई सांसद है ही नहीं हमारा, क्या आएगा? हमने कोई सांसद को देखा ही नहीं है, पिछाना ही नहीं है, क्या आएगा? कब आते हैं? बस वोटिंग के लिए आते, उतनी देर मुँह दिखाते और चले जाते, फिर बाद में गायब हो जाते। आपका नेता किस तरह का है? हमको नेता इस तरह का चाहिए कि जो हमारी गरीबी की समझे हालत, हमारे देखे सारी पब्लिक की हालत समझे, वो उस तरीके का नेता चाहिए। आपके यहाँ क्या चीज़ की समस्या है? हमारे गली में ये रोड नहीं बनाते, कुंडिया का नहीं आते, हम गरीब लोग पैसा उड़ा के कुंडिया बनाते, कुंडिया बनाने नहीं आते, कोई देखने भी नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम लोग गरीब लोग पैसा कमाएंगे क्या, पहले ये गटरा में इसमें सब में डालेंगे, और चौमासे के दिन तो फिर हम लोग को तो बहुत तकलीफ है, पानी किधर से जाएगा? ये दीवार इतनी बड़ी बना दिए ले, ना बच्चों को खेलने को कुछ हुआ है मैदान है, ना हम लोग को है कोई वस्तु रखने को कुछ जगह नहीं है। ये घर में सामने इतनी बड़ी दीवार, क्या सांस लेने तकलीफ, बीमार हो रहे, ये मच्छर उच्छर सब। बच्चे का पढ़ाई के बारे में किस तरह का आपको सहमत उठाना? हमारे को गन सहमत उठाना पड़ती, जाती दूर जाओ, फिर वहाँ पे टीचर का ठिकान नहीं रहता, बच्चे मारा मारी करते, सिर फोड़ के आते, टीचरों बराबर नहीं है, पढ़ाई बराबर नहीं है, 8वीं 9वीं तक भी पढ़ ले तो बच्चों को कुछ नहीं आता। और आपका नेता किस तरह का होना चाहिए? हमारे को हमारी जैसी तकलीफ समझे, हमारा सब समझे कि भाई इनकी इतनी पगार है, इसमें से ये रोड बनाने में, गडरा ये लाइन डालने में, ये इतना सब तोड़े, उन्होंने लाइन भी नहीं बनाए, हम किस तरह करें? हमारे लोग बीमार हो रहे बच्चे, ये सब। आपकी समस्या क्या है विस्तार? यहाँ हमारी समस्या तो बहुत सब है। यहाँ हमको ना कोई भाजपा का कार्यकर्ता देखने आता है, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता देखने आता है। हमारी झोपड़पट्टी टूट गई, हमको यहाँ से वहाँ भेस्तान फेंका गया, 2-2 कलाक तक के हमको रेलवे फाटक के पास खड़े रहना पड़ता है, और वहाँ पे हमारे से पैसे भी उगराए जाते हैं। पहले हमको एक मीटिंग में बुलाया गया कि तुम्हारे पैसे यहाँ माफ़ हो जाएंगे, तुम आओ यहाँ पे। हम वहाँ से छोड़ के हम वराचा गए। वराचा जाने के बाद हमको मीटिंग के अंदर बहुत कुछ बोला गया कि तुम्हारे पैसे माफ़ हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी के हमारे पास सिग्नेचर भी है उस कार्ड के ऊपर, वो कार्ड हमको दिया गया, बोले तुम्हारे पैसे माफ़ हो जाएंगे। और आज म्यूनसिपाल्टी हमारे पास वहाँ पे पैसे उगराने के लिए आ रही है। क्या चीज़ का पैसा उगराती है? वो हमको बोलते हैं कि तुमको ये मकान दिया, इसका पैसा, तो इन्होंने हमारी ज़मीन ली, इसका पैसा हमको कौन देगा? और दूसरी क्या समस्या? और ये दूसरी ये समस्या है कि हमारे यहाँ जरदोज जो बहन है, वो आज तक के ना हमको कभी हमारा हालचाल पूछने के लिए आई, ना हमको कभी हमारी समस्या पूछने के लिए आई। हमारी इतनी बड़ी झोपड़पट्टी टूट गई, ना हमको कोई जात का यहाँ आश्वासन दिया। भाई यहाँ की क्या समस्या है? समस्या में तो ये है साहब, क्या हमारे लोगों के, जो गरीब लोगों के यहाँ से जो झोपड़पट्टी टूटी है, क्या उसमें बहिस्तान भेजा गया है, वहाँ कोई बात की सुविधा नहीं है, पानी नहीं आता है, लाइट नहीं है, हर बात की सुविधा, जाने की तकलीफ है, आने की तकलीफ है। हमारा जहाँ घर पक्का घर था, वहाँ हमको पक्का दिया, आपकी मेहरबानी, बहुत अच्छा करे तुमने, पर हमको कितनी तकलीफ है ये देखो। क्या हमारे से पैसा वहाँ उगरा जाता है, यहाँ का हमारा पैसा, हमारा यहाँ घर था वो तोड़े तुमने, और वहाँ हमको दिया, तो फिर वहाँ हमसे पैसा क्यों मांगते आप? आपने हमको एक बार रैली में कहा कि नरेंद्र भाई मोदी के वहाँ चलो, वराछे में सरदार पटेल हॉल में, आपका सब पैसा माफ़ हो जाएगा। ये चीटिंग करे हमारे साथ में, हमको चीटिंग करके लगे हैं लोगों ने, और हमारा कुछ पैसा माफ़ नहीं होना। आज हमको वहाँ आके कहते कि हमारे को हफ्ता भरो, हम कैसे भरेंगे गरीब आदमी हफ्ता? और दूसरी क्या समस्या? दूसरी समस्या ये है क्या, जो 5 साल हमारे दक्षिणाबेन जरदोज जो सांसद रहे, वो एक भी दिन ऐसा विस्तार में आई नहीं कोई गरीब की समस्या पूछने के लिए कि भाई आपको क्या तकलीफ है। तो हमको अब ऐसा नेता चाहिए कि हमारे गरीबों की समस्या लेके चले और हमारे साथ चले और हमारा काम करे गरीबों के, और हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हमको ना कांग्रेस से मतलब है ना किससे मतलब है, हमको तो मतलब है अच्छे आदमी से। अच्छा आदमी आवे,
हम उसके साथ देंगे। અને મોદી સરકાર બોલते हैं विकास किए रखे गुजरात गुजरात के विकास के लिए हम नहीं कहते, हम भी साथ देंगे गुजरात के विकास के लिए, पर गरीबों को हटा के विकास करना, तुम सिंगापुर बनाओ, सूरत को सिंगापुर बनाओ, हम तुम्हारे साथ है, पर गरीबों को हटा के सिंगापुर बनाएंगे ये नहीं चलेगा। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। क्या चीज़ की समस्या है? समस्या तो बहुत सब है, पर उसमें कुछ समस्या तो अभी तक के ओपन ही नहीं हुए, बस समस्या है, लग रही है समस्या है। लोगों ने उसको कहा हो जाएगा, पर अभी तक के कोई चीज़ होने को तैयार नहीं हो रही है। यहाँ से जो लोग गए ऑलरेडी बहुत परेशान है, हर चीज़ से टूट गए, काम से टूट गए, धंधे से टूट गए, व्यापार से टूट गए। जिसके यहाँ दुकानें थी उनकी दुकानें काट दी गई, उनको दुकानें आपको मिलेंगी, पर कब मिलेंगी? जब वो मर जाएंगे तब मिलेंगी। कब मिलेंगी? हर वक्त एक वादा सौंपा जाता है, बस एक आश्वासन देकर रखते हैं कि बस हाँ आपको मिलेगा, पर कब मिलेगा? जब उसके बच्चे चले जाएंगे या वो चले जाएंगे तब मिलेगा। उससे कोई मतलब नहीं आता। हमें तो ये चाहिए कि बस हमें आज टूटा है कल मिलना होना, क्योंकि आप कुछ ले रहे हैं उसके बतौर हमारे से। आपका ये विस्तार का सांसद कौन है? हमारा इस विस्तार का दर्शनाबेन जरदोश। आपके यहाँ मुलाकात लेने कभी आई है यहाँ 5 साल में? अभी 5 साल में क्या, मैंने तो आज तक कि उनको देखा भी नहीं कि कौन है वो। आपका नेता किस तरह होना चाहिए? हमारा नेता तो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे सपोर्ट में, हमारे समर्थन में, हमारे साथ चले, हमारी परेशानी को समझे, हमारी बात को लेकर चले। बस इसी तरह हमें अच्छा नेता, और चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हमको किसी से कुछ नहीं, बस हमें तो अच्छा नेता चाहिए कि जो हमारी बात को समझे, जो हमें समझे। और यहाँ एजुकेशन के बारे में क्या कहना है? एजुकेशन के बारे में तो समझो कि कुछ अच्छी बातें भी और कुछ बुरी बातें भी, क्योंकि एजुकेशन के लिए यहाँ पे जो लोग थे वो तो इतनी दूर चले गए, अब उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अब वो पढ़ रहे हैं, वो यहाँ से वहाँ आना है, वहाँ से यहाँ आना है। कुछ बातें तो वहाँ स्कूलों में भी उनको मिलती नहीं है, क्योंकि वहाँ सर होंगे तो मिलेंगी ना। और यहाँ आते तो यहाँ उनको एजुकेशन मिलता है, पर थोड़ा ही मिलता है, क्योंकि उनको टाइमिंग इतना वो है, कुछ दिन आते कुछ दिन नहीं आते। 30 रुपये 40 रुपये उनको भाड़ा लग जाता है। क्या आएंगे वो लोग यहाँ पढ़ने भी? कितनी परेशानी से वो लोग यहाँ आते भी है और चले भी जाते रिटर्न। आपके यहाँ क्या चीज़ की समस्या? हमारी क्या समस्या है यार, सब हर चीज़ सोचते हैं कि इलीगल में उड़ा देना। अब ये रोड इलीगल में टूट गया, बराबर 3 तारीख के दिन हमको दुनिया भर का हैरान करेगा, जबकि ट्रस्ट की वक़फ़ की जगह है। पेपर में आता है वक़फ़ की जगह धार्मिक जगह होती, ना वो बिक सकती ना कभी टूट सकती, तो भी इसमें कुछ ना कुछ करके भाई इलीगल जगह को तोड़ने की सोचते। नेता कोई भी हो, इलेक्शन में 5 साल में जब वोटिंग के लिए आता है तो इसकी सूरत नज़र आती है, बाकी कोई ना 5 साल के बाद तो उसके बाद नज़र भी नहीं आते, कोई नज़र आता नहीं है। क्या समस्या नहीं है तो क्या है भाई? समझो हमको ही लड़ना और हमको जीना है यहाँ पर, ये समझो ये समस्या है बस। आपका यहाँ का सांसद कौन है? दक्षिणा जरदोश है जो है, पर कोई आता ही नहीं ना, हम तो आज तक पहचानते नहीं कौन है, कौन वडील है। बस इलेक्शन के टाइम आता भाई ये करना है वो करना है, बस वही बात है। आपका नेता किस तरह का होना चाहिए? नेता तो वो यार कि एक फ़ोन करे, कोई समस्या हो तो तुरंत जगह पे आके खड़े हो, वही नेता होना। और क्या, हर पब्लिक की सोच वही है, मेरी क्या, हर पब्लिक की सोच वही है। और विकास के बारे में क्या कहना है? विकास तो कुछ नहीं है यार, कोई विकास नहीं है, खाली है ना पब्लिक को हैरानगिरी है। झोपड़पट्टी तोड़ो, उसको इतनी दूर बसा दो कि कोई सिटी में आने को 10 बार सोचे, उसके पास भाड़ा नहीं, तोड़ा नहीं, किस तरह जी रहा उसका हाल उसको मालूम। आपका नेता कौन है यहाँ का? यहाँ तो अभी तक के हमने ऐसा कोई नेता ही नहीं देखा कि गरीबों की फरियाद सुने। खाली वो इलेक्शन आता है जब अब हम ये कर देंगे, नल बैठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वोटिंग ले लेते ना, उसके बाद कौन है क्या है कोई पहचानते नहीं है। आपका नेता किस तरह का होना चाहिए? हमारा नेता ऐसा होना चाहिए कि गरीबों की फरियाद सुने, गरीबों से हमदर्दी रखे और हमको हर बात की सहूलत दे। और विकास के बारे में क्या कहना है? विकास तो नकामा हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं आ रहा है। गरीबों की मार के विकास कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? यहाँ क्या चीज़ की समस्या है? यहाँ तो बहुत समस्या है। इसी तो ये हमारे घर तोड़ के यहाँ पे विकास कर रहे, गार्डन बना रहे, और गार्डन बना गरीबों को परेशान करके बेस्तान बेच दिया हम लोगों को। अगर उससे बेहतर था हमारे घर तोड़ के विकास करना ही था तो यही बना के हम लोग को दे देते, तो गरीब भी उनको फ़ायदा था गरीबों के लिए। किस तरह का आपको नुकसान हो रहा है? रोजी रोटी से सब चीज़ से टूट गए हम लोग को। तो गरीब को वहाँ से आने के लिए 50 रुपये आज भाड़ा लगता है। 150-200 रुपये कमाने वाला अगर 50 देगा तो करेगा क्या? पहले निकलने से पहले ये सोचना पड़ता है खीसे में पैसे है कि नहीं है। वहाँ हर चीज़ से परेशान है। आपका यहाँ का सांसद कौन है? जरसनाबेन जरदोश है। कितनी बार यहाँ आए आप? कभी दिखे नहीं। 5 साल में एक बार जब इलेक्शन आता है खाली राउंड मारने के लिए दिखाई देते, उसके अलावा कभी नहीं। और
क्या विकास किए हैं उन्होंने? विकास यही गरीबों के घर तोड़ के ना गार्डन बना रहे, दूसरा और क्या विकास कर रहे? पैसे वालों का विकास हो रहा है, गरीबों की मरण हो रही है। आप क्या कहना चाहते हैं इस तरह विकास करने से? ऐसा विकास करने से, विकास ऐसा करो कि सबके काम है, गरीब के भी काम है और अमीर के भी काम है। खाली अमीर का फायदा, गरीब का नुकसान, इसको विकास थोड़ी बोलते हैं। क्या चीज़ की समस्या आपके यहाँ पर? तो हर चीज़ की समस्या है यहाँ पर, जो है ड्रेनेज लाइन की समस्या है, पानी की समस्या है। अभी फ़िलहाल में 4 दिन से पानी यहाँ पर ख़राब आ रहा है, मिक्स आ रहा है पानी, गटर लाइन का पानी मिक्स आ रहा है इसके अंदर। और साफ़ सफाई के बारे में? साफ़ सफाई तो बिल्कुल ही नहीं है। साफ़ सफाई के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है यहाँ पर, ना फर्शियों की सुविधा है ना ही रोड की सुविधा है। सांसद कौन है यहाँ का? ये तो हमें खुद पता नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ कौन निवड़ के आता है, कौन चुन के आता है, कौन जीत के आता है, इसका हमें कोई पता नहीं। और आता भी है तो बस वोटिंग के टाइम पे आता है, उसके बाद फिर तो चेहरा दिखता नहीं है, कौन आया कौन गया ये हमारे को पता नहीं। आपका नेता किस तरह से होना चाहिए? हमको तो बस नेता की ऐसी तलाश है कि बस हमारी समस्याओं को सुलझाए और हमारे जो यहाँ पर गरीब लोग हैं यहाँ पर, उनको काम धंधा रोज़ी रोज़गार ये दे, फिर अच्छा घर दे। अभी यहाँ पर बस्ती टूटी भी है, वो लोग बेस्तान में गए, बाकी उनको बहुत तकलीफ़ है। काम धंधा उनका यहाँ पर है, सिटी में आने उनको दूर से बहुत तकलीफ़ होती है आने जाने की, ये समस्या है। गुजरात के अंदर बोलते हैं विकास का काम, विकास हो रहा है, किस तरह का विकास? विकास हो रहा है, हम भी मानते हैं विकास हो रहा है, बाकी गरीबों के पेट पे पार रख के विकास हो रहा है। और जो भी चीज़ जैसा मान लो कि सड़कें बन रही है, कुछ भी बन रहा है, गार्डन बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पास से पैसा जा रहा है, सरकार पैसा नहीं लगा रही। क्या चीज़ की समस्या है? समस्या तो हर चीज़ की है। देखो ये डिमोलिशन हुआ, उसके बाद ये रोड भी बनाया नहीं है, अभी पानी भी ख़राब आ रहा है। यहाँ अगर आग लगे तो अपने फायर ब्रिगेड का बम्बा भी आ नहीं सकता वो। और आपका नेता किस तरह का होना चाहिए? कि यानी पब्लिक के जो ज़रूरत सुनने वाला हो वैसा नेता चाहिए हमको। आप क्या चाहते हो? आपके नेता को क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? हाँ कि भाई तुम आओ हमारे इधर आके तुम देखो कि भाई हमारे को क्या तकलीफ़ है, वो नेता हमको चाहिए। हमारे अक्के जितने भी है सबके यही मांगे। आपके विकास के बारे में क्या कहना है? विकास के बारे में तो उन लोग क्या है, रोड बनाते हैं, मगर वो गरीबों को तो तकलीफ ही है ना वो बात की। विकास किस तरह का है गुजरात में? गुजरात में विकास क्या है, झोपड़पट्टी काट के उन लोग रोड बनाते, ब्रिज बनाते, यानी गरीबों को कोई ख्याल करा ही नहीं अभी तक उन लोग ने। आपका यहाँ का सांसद कौन है? यहाँ का सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है जर्दनाबेन क्या दर्शनाबेन जरदोश, उन्होंने कभी यहाँ की मुलाकात ली है? वो समझ लो कि 5 साल से आज 5 साल हो गए, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ, जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा, मेरा अनुभव है, वो कभी यहाँ उनकी परछाई भी नहीं पड़ी हमारे इस पूरे विस्तार में। ये पूरे विस्तार की मैं बात कर रहा हूँ, कभी उनकी परछाई भी नहीं पड़ी। सूरत के अंदर किस तरह की कामगिरी है? सूरत के अंदर जो कामगिरी है, तो जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा करके उद्योगपतियों की कामगिरी चल रही है। मध्यम वर्ग गरीब वर्ग के लिए तो कोई खलास नहीं है, और ना ही मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की कोई सुनवाई हो रही है। आपका नेता किस तरह का होना चाहिए? हमारा नेता तो हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा नेता सबसे पहले तो ऐसा होना चाहिए कि जो हर एक कास्ट को, हर एक कौम को, हर एक समाज को, गरीब मध्यम वर्ग और उद्योगपति को, सबको एक नज़र से देखे, एक साथ लेके चले, एक साथ सबके साथ वर्तन करे और एक साथ सबकी आवाज़ में आवाज़ लगाए। ऐसा नेता हमको चाहिए। क्या समस्या है आपके विषय? समस्या तो अक्का तुम इलाका फिरो हमारे महल्ले का, तो ना कोई सफाई है ना कुछ है, सब गंदगी गंदगी है। हमारा जो कब्रिस्तान है, अगर वहाँ हमारी जो मैयत जाती है तो जो आदमी खाना देता है वही चल सकता है, इतनी रास्ता ख़राब है और गंदगी है। और जगह तो कोई हिसाब की है ही नहीं, रोड भी नहीं है, कुछ नहीं है, सफाई तो कोई दिन नहीं है। कभी कोई आया तो जरा मार लिया चला गया बस। एसएमसी वाले एसएमसी के आदमी लोग साफ सफाई के लिए जाते हैं? हाँ, कोई आता नहीं ऐसा। कभी आया 8 दिन 15 दिन में तो ठीक, नहीं तो कुछ भी नहीं। और क्या
कचरे का ढिगला पड़े रहता है। कचरे की गाड़ी का कचरे की गाड़ी आती है रोज, वो घरों घर से डब्बे वो तो डालते, वो तो ले जाता है। और आपका यहाँ का नेता कौन है? नेता हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। आपके पास आए उन लोग कभी? कोई नहीं, हमको मालूम भी नहीं है कौन है नेता न कौन नहीं, न कभी आया भी नहीं, न कभी देखे भी नहीं हमने। आपका नेता किस तरह का होना चाहिए? भाई नेता तो ऐसा होना चाहिए ना कि आके देखना चाहिए, पूछना चाहिए क्या तकलीफ है। पानी का देखो बराबर नहीं, कभी बे टाइम पानी आता, कभी रात को 10 साढ़े 10 बजे भी आता। क्या समस्या आपके विस्तार की? ये साफ़ सफाई नहीं होती है और पानी भी रास्ते में न बह गया होता है, ये वो चलने करने की भी तकलीफ पड़ती है, कोई ध्यान नहीं देता है न साफ़ सफाई वाले। और आपका यहाँ का सांसद कौन है नेता? ये तो अपनों को पता कभी आपकी मुलाकात हुई है उनके साथ? नहीं, अब मुलाकात नहीं हुई। आपको कब दिखाई देते हैं आपके नेता यहाँ के? वो तो इलेक्शन के टाइम पे दिखाई देता है। आपके नेता किस तरह का होना चाहिए आपका? ये जो काम काज करता है वो ही नेता होना चाहिए कि भाई साफ़ सफाई पे ध्यान देवे, यानी जनता पे ध्यान देवे बराबर कि भाई हाँ ये चल रही है, उनके काम आवे। मतदान तमारो अधिकार अने फरज छे, परंतु कया छे तमारा हक जाणो मारी साथे। પોતાના જનપ્રતિનિધિ માટે શું વિચારે છે આજનો યુવા? અમે લોકો મત આપે પછી જે નેતા ચૂણીને આવે એ અમારું કામ નથી કરતો। अनेक समस्याओं वच्चे घेराયેલો છે આજનો मतदान। सबसे बड़ी समस्या सूरत के अंदर है ट्रैफिक की और दूसरा करप्शन। કેવો હોવો જોઈએ તમારો ઉમેદવાર? અમારો ઉમેદવાર એવો હોવો જોઈએ જે ગરીબોની સમસ્યા અને એમની વચ્ચે ઊભો રહીને બધાની સમસ્યા દૂર કરી શકે। તો જણાવો આપનો અભિપ્રાય, અમે કરીશું તમારા હક અને સમસ્યાઓની રજૂઆત S9 ન્યૂઝના ચૂંટણી વિશેષ મારો હક મારા મત કાર્યક્રમમાં।